Hello everyone. In this session, I am going to continue the topic G20, additional topic assigned by CBSE for the class 10th. So here you can see the group of 20 means the group of 20 nations. It is a group of 20 countries. So I am going to continue from the place where I left the lecture yesterday. Before I start, I am giving you a recap. So this is what we studied yesterday. You are able to see group of 20. What was the purpose to form, to organize, to create this nation? Its main objective was to cooperate each other countries. The member countries can cooperate, especially economic cooperation could be done by the members country. So here we had discussed this is the group of 20 nations. India has assumed its presidency and it was founded in 1999, and the reason behind to discuss global economic and financial issues. It was the main aim. Finance minister and central bank governors get together and they discuss on the global and economic issues. Next, group of 20 has strengthened and upgraded to the level of heads of state. Initially, only finance ministers and governors of central banks used to be come together. But finance crisis of 2007 onward, it was upgraded to the level of heads of state. That is, head of state means are the prime minister or the president of a country. They too will get together. They will also attend the meeting. Okay, so yesterday we covered this all thing. And who are the members of G20? So I informed you, I let you know that there are 19 countries plus one European Union. So there are some countries. And why this G20 is very important? Just because of these 20 countries, these 20 nations are very contributing to the world. They are sharing, they are representing 85% of global GDP, 75% of global trade, and 2/3 of world population. So everything we have covered in the last video. And now this is the another point that I am going to deal with today, and this is the next video. Continue. Here you can have a look on the world map. The members country has been located on the world map. Okay. Now this session is going to be very important because this session is having many important factual details. So it is important in points of your examination view. So G20. What is the logo of G20? From this logo, you may have a question. Definitely, the chances, the probability, the possibility of the question to be asked in the exam is very high from this session. Okay, so लोगो का हम लोग मतलब समझेंगे, एक एक मतलब क्या होता है इसके.
क्यों लोगो ऐसा बनाया गया सर? सो बिफोर आई deliver the lecture, let's have a look on the logo. This is the G20 logo. Vasudhaiv Kutumbakam, one earth, one family, one future. तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में. तो आपने G20 लोगो देख रखा है. ओके, सो दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ G20 लोगो हैज़ बीन डिज़ाइन. इसकी डिज़ाइन करने के पीछे का मकसद क्या है भाई? टू कन्वे द इसेंस and the indigenous wisdom of India. Actually, this logo represent, it is showcasing, it is conveying the essence and indigenous wisdom of India. इंडिया का जो भी essence है, पूरे इंडिया का जो निचोड़ है, वो दिखाने वाला है इस लोगो में. ठीक है, इंडिजिनस जो स्पेशली लोकल विजडम है इंडिया का, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये लोगो. और ये अपने साथ एक विज़न भी क्लियर कर रहा है, और वो विज़न ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात करता है. अपने लोगों में ये वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है. व्हाट डज इट मीन? वसुधैव, वसुधैव मीन्स, वसुधा मीन्स पृथ्वी, वसुधा मीन्स पृथ्वी, वसुधैव पृथ्वी, वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंबकम का मतलब होता है, कुटुंब का मतलब होता है फैमिली. तो पूरा वर्ल्ड ही क्या है? ये पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है. वसुधैव कुटुंबकम, गॉट द पॉइंट? इट मीन्स वर्ल्ड इज अ फैमिली. ये पूरी दुनिया एक फैमिली की तरह है. एंड एवरी नेशन, एवरी कंट्री इज जस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर्स. ओके, सो ये वसुधैव कुटुंबकम इसका थीम है भाई. और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द मेन थीम, व्हाट इज द स्लोगन of this G20. तो one earth, one family, one future. This is the Vasudhaiv Kutumbakam, one earth, one family, one future. So ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको आप ध्यान से रखना क्योंकि ये लोगों से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं. ओके, सो दिस इंस्पिरेशनल लोगो हैज़ बीन डिराइव्ड from which Upanishad we have derived it? See, संस्कृत टेक्स्ट है एक महाउपनिषद, वहाँ से हमने इस वसुधैव कुटुंबकम को ड्रॉ किया हुआ है, उसको हमने डिराइव करा हुआ है. गॉट द पॉइंट? ओके. और इस लोगो में हम वन बाय वन हम लोग इसका की फीचर एलिमेंट्स चेक करेंगे क्या क्या है. तो सबसे पहले आप देखो इस लोगो में इंडियाज नेशनल फ्लैग कलर आपको दिख रहा है. ट्राई कलर है यहाँ पे, सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन. ओके, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब आपको पता ही है, प्रोस्पैरिटी को भी शो करता है, ये प्योरनेस को भी शो करता है. ओके, नाउ सॉरी, इट ऑल्सो जक्सटपोज का मतलब होता है इट इज कीपिंग, प्लेसिंग टुगेदर, एक साथ रखना प्लैनेट अर्थ को प्लस लोटस को. यानी कि इस लोगो में आप देख पा रहे हो कि साथ में ये लोगो आप देख पा रहे हो यहाँ पे लोटस भी है और अर्थ भी है. ठीक है भाई, तो ये लोटस और अर्थ को जक्सटपोज किया गया है. इट मीन्स इनको एक साथ रखा गया है. क्यों रखा गया है भाई? व्हाट डज इट मीन? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लोगो? तो इसका मतलब ये है कि इट रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ एमिड चैलेंजेस. इसका मतलब है कि हमें बहुत सारे हमारे वर्ल्ड में चैलेंजेस है और इस चैलेंजेस के बावजूद भी हमें क्या करना है? ग्रोथ को अपना ग्रोथ कंटिन्यू रखना है, जारी रखना है. तो ये फिगर, इस लोटस का इंपॉर्टेंस आपको समझ में है. आपने देखा होगा लोटस वहीं ग्रो करता है जहाँ पे मड होता है, कीचड़ होता है. तो देर आर सो मेनी चैलेंजेस अराउंड द लोटस. डिस्पाइट इट कंटिन्यूज टू ग्रो, इट कंटिन्यूज टू ब्लॉसम. पॉइंट इज क्लियर? तो यही वजह है कि दुनिया में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट हमें उस चैलेंजेस को डिफीट करते हुए आगे बढ़ना है, ग्रो करना है. पॉइंट इज क्लियर? ओके, so this is the significance of earth and lotus. Earth has been placed on the lotus. Next, it also affirms
द वैल्यू ऑफ ऑल लाइफ। और इतना ही नहीं, ये पूरे लाइफ को, वैल्यू को भी सुदृढ़ कर रहा है, सुनिश्चित कर रहा है। जैसे किसके लाइफ को? ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम सबको इम्पोर्टेंस देंगे। ये इंटरकनेक्टेडनेस की बात करता है अर्थ प्लैनेट पे। और मैंने आपको बताया ही था कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इंटरकनेक्टेडनेस होता है। दैट्स वाई ये चैप्टर ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में रखा गया है इकोनॉमिक्स में। ठीक है भाई, ओके नेक्स्ट। अब लोगों का दूसरा मतलब समझो। आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो G2 के बाद जो ज़ीरो बना हुआ है, ये ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे G20 नहीं लिखा, इसके जगह पे अर्थ जैसा रखा गया है, स्फेरिकल, यानी कि ज़ीरो के प्लेस पे हमने क्या रखा है? अर्थ को रिप्रेजेंट किया है। तो इट हैज़ बीन वेरी स्मार्टली डिज़ाइन, द लोगो हैज़ बीन वेरी स्मार्टली डिज़ाइन। ओके नेक्स्ट। और आपको पता है लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है। एनीवे, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। भारत भी लिखा हुआ है यहाँ पे हिंदी में और इंग्लिश में। ठीक है, ओके नेक्स्ट पॉइंट जो मेन इसका इम्पॉर्टेंट है, वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली। विद द हेल्प ऑफ दिस कोटेशन, इंडिया is trying to convey it, India is trying to give a message to the world. The world is one family and the need to live together and living with others. और इसका मतलब यह है कि अगर हम दुनिया, पूरी जो दुनिया है, वर्ल्ड है, वो फैमिली है और हम उसके मेंबर है, तो हमें साथ में रहना है, एक साथ रहना है यहाँ पे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द थीम। इसका मतलब अगर एग्जाम में आ गया कि वसुधैव कुटुंबकम जो इसका स्लोगन है, आप इसको एक्सप्लेन करो, डिस्क्राइब करो, तो आप कर ले जाना। इट मीन्स द वर्ल्ड इज वन फैमिली, ओके, एंड एवरी नेशंस इज फैमिली मेंबर एंड they need to live together. Okay, understand the next point. This G20 theme also underscores the need for the peaceful coexistence and mutual cares. इससे ये थीम ये भी क्लियर करता है कि देखो भाई, हमें पीसफुली रहना है, साथ साथ रहना है और एक दूसरे का ध्यान भी रखना है। गॉट इट? दिस मेक्स द country This makes the countries and people of the world understand and realize the importance of making a better world for us and our future generations. और ये भी हमको रियलाइज़ कराता है, दुनिया के लोगों को ये भी रियलाइज़ कराता है, जो दुनिया के लोग हैं, कंट्रीज़ हैं, उनको ये भी रियलाइज़ कराता है कि क्या इम्पोर्टेंस है हम एक बेहतर दुनिया को कैसे बना सकते हैं। और जब एक बेटर वर्ल्ड होगा तो वो हमारे लिए तो हेल्पफुल होगा ही, ये हमारे आने वाले जनरेशन के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो जो भी रेड पॉइंट्स है मैंने हाईलाइट किया है, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, एंड दिस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग, G20 एजेंडा। एजेंडा क्या है भाई? द लिस्ट टू बी डन। एजेंडा का लिटरल मीनिंग होता है लिस्ट। इट इज़ अ काइंड ऑफ it is a kind of list, schedule or schemes to be done, the programs to be done। क्या क्या करना है इनको, किस फील्ड में क्या करना है, वो फील्ड के बारे में बताना है कि किस सब्जेक्ट पे ये लोग बात करेंगे, काम करेंगे G20 के लोग। तो मेन मैंने आपको बताया था, जब G20 लॉन्च हुआ था, इसका मेन जो फोकस था इकोनॉमिक कोऑपरेशन था, बट बाद में इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड किया गया, अपग्रेड किया गया। अब इसका जो मेन एजेंडा है वो है आपका, ये देखो, दिस इज द एजेंडा ऑफ G20। ट्रेड से हम रिलेटेड बात करेंगे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वर्ल्ड इशू है, ये भी हमें टैकल करना है, हाउ टू टैकल, हाउ टू एड्रेस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी हमें अचीव करना है, इंश्योर कराना है। हेल्थ रिलेटेड, लाइक कोरोना जैसे सिचुएशन आ गया, तो हम कैसे उसको टैकल करेंगे, उसको कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। एग्रीकल्चर इशू से हम लोग, एग्रीकल्चर में क्या क्या चैलेंजेस है। एनर्जी रिगार्डिंग, हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करेंगे या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करेंगे। एनवायरनमेंट रिगार्डिंग, एनवायरनमेंट इसका क्रूशियल पॉइंट है, और एंटी करप्शन एंड इवन
एंटी टेररिज्म, ठीक है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो ये है इनका G20 का एजेंडा। दीज आर द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑन विच डिसीजन इज टू बी टेकन, on which the discussion will be going on. Point is clear? So this is all about the agenda. Now come to the next point. How does G20 presidency steer the G20 agenda? ये G20 एजेंडा को कैसे स्टीयर करते हैं, इसको कैसे चलाते हैं भाई? तो देखो भाई, आपको पता है G20 के दो पैरेलल ट्रैक्स होते हैं, दो रास्तों पे काम करते हैं। एक साइड में फिनांस और दूसरे साइड में शेरपा। फिनांस में फिनांस मिनिस्टर और गवर्नर होते हैं सेंट्रल बैंक के, और दूसरे साइड ये शेरपा होते हैं। शेरपा के बारे में समझ लो, शेरपा का मतलब क्या होता है। शेरपा इज़ अ नेपालीज एथनिक कम्युनिटी। ये नेपाल का एक लोकल कम्युनिटी होता है जो स्पेशली बड़े फेमस होते हैं हिमालयन रीजन में गाइड नाम से। ये लोग गाइड करते हैं, ये माउंटेनियर्स होते हैं, ये लोग माउंटेनियर्स को गाइड करते हैं, ठीक है, जब माउंटेन पे इनको क्लाइंब करना होता है तो ओके। तो सिंपली शेरपा का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, या हेड ऑफ गवर्नमेंट। शेरपा किसी न किसी को वो इनको अपॉइंट किया जाता है। जैसे इंडिया का शेरपा कौन था, जो नीति आयोग के फर्स्ट वो आई थिंक अरविंद फनगड़िया थे, ठीक है। तो एक बार इसको चेक कर लेना कि शेरपा इंडिया का कौन था, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। सिंपल आपको ये जानना है कि शेरपा होता कौन है। शेरपा रिप्रेजेंटेटिव होता है कंट्री का या गवर्नमेंट का, ठीक है। तो अगर बाय द वे कोई भी गवर्नमेंट है वो अपना एक शेरपा अपॉइंट करता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। शेरपा कौन होता है? शेरपा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट होता है या हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। शेरपा का काम क्या होता है? ये स्पेशली नेगोशिएशन पे नज़र बनाया होता है। जो भी डिस्कशन होता है एजेंडा में, उस आइटम्स को उस पर काम करना, उस पर कोऑर्डिनेट करना, ये इसका मेन काम होता है। यहाँ से आपके एग्जाम में आने के चांसेस कम है। बस आपको ये जानना होगा कि शेरपा का काम क्या होता है और इंडिया की तरफ से शेरपा कौन था, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये आप समझो थोड़ा सा। लाइफ क्या है? LIFE, लाइफ का मतलब होता है इट इज़ अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय आवर प्राइम मिनिस्टर इन द ग्लासगो COP। कॉप की मीटिंग हुई थी, COP 26 में अपने प्राइम मिनिस्टर ने एक कॉन्सेप्ट ईजाद किया था। इन्होंने टेबल करा हुआ था कि लाइफ का मतलब, एक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, इसका मेन एम क्या था? लिविंग इन हार्मनी विद द नेचर फॉर अ सस्टेनेबल लिविंग। अगर हमें सस्टेनेबल तरीके से लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अगर हमें सस्टेन करना है अपने लाइफ को, तो हमें एक लाइफ कॉन्सेप्ट अपनाना पड़ेगा, अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे कुछ। यानी कि इस लाइफ का जो मेन मतलब है, मेन जो पर्पस है, वो यही था कि हमें नेचर के साथ हारमोनियस तरीके से रहना पड़ेगा, हमें नेचर का मिसयूज नहीं करना पड़ेगा। यानी कि लाइफ मीन्स इट इज़ अ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। और हमें डेली लाइफ में अपने लाइफ स्टाइल को थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। हमें इको फ्रेंडली ऑब्जेक्ट्स का, मटेरियल्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइफ। और ये किसने प्रोपाउंड किया था? इट वॉज प्रोपाउंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी एट द ग्लासगो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP 26 में हुआ था, जो 2021 में, ठीक है। तो सिंस इट हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ओके। सो आपको पता ही है कि एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन की वजह से हमारे लाइफ भी अफेक्ट हो रहे हैं। और इस वजह से हमें लाइफ एक तरीका देता है आपको, या एक रास्ता प्रोवाइड करता है, लिविंग विच रिस्पेक्ट द नेचर एंड अदर ऑर्गेनिज्म। कि हमें नेचर को और ऑर्गेनिज्म को जो हमारे साथ साथ रहते हैं उनको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। अपने लाइफ स्टाइल में ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे, या ऐसे एक्टिविटीज़ को इनकलकेट करना पड़ेगा
जिसके वजह से हम नेचर को और ऑर्गेनिज्म को रिस्पेक्ट कर सके। ठीक है भाई। और इससे होगा क्या कि ग्रीनर और क्लीनर अर्थ हमारी बनी रहेगी और हम लोग सस्टेन कर पाएंगे लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। एंड दिस इज द इनिशिएटिव्स एंड एक्टिविटीज, दिस इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट। आपको पता है कि G20 जो कंट्री है इट ब्रिंग्स डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, पूरे दुनिया के जो भी डेवलप्ड इकोनॉमी है और डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उसको ये एक साथ लाता है, एक फोरम पे लाता है। ठीक है भाई। और ये सभी डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज को एक साथ बाइंड करता है, सबको एक साथ जोड़ने का काम करता है। और इससे होता क्या है भाई कि म्यूचुअल बेनिफिट होता है एक दूसरे का। ठीक है। और G20 मीन्स पीपल्स G20, ये बात करता है लोगों का G20 है, सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है भाई। हम सभी लोगों की जन भागीदारी से ये इसके जो वर्क है, जो इसका टारगेट है, जो इसका एम है, जो ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन, जिसको जन भागीदारी बोलते हैं। ठीक है। और इस दौरान इंडिया में आपको पता है कि ये बहुत से मीटिंग हुए थे, टोटल पूरे एक साल का प्रेसिडेंटशिप है हमारे पास। तो इसमें हमारे यहाँ G20 के 200+ मीटिंग्स हुए थे 50 डिफरेंट सिटीज़ में। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इंडिया के जो भी कल्चरल वैल्यूज़ है, हेरिटेज है, हमने उसको दिखाया है विद द हेल्प ऑफ G20 प्रेसिडेंसी। ठीक है भाई। जैसे कि बहुत सारे फेस्टिवल हो रहे थे इंडिया में, हॉर्नबिल हुआ था नागालैंड कोहिमा में, तो हमने उसको भी दिखाया था। ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है। इसमें कुछ गेस्ट कंट्री भी आए हुए थे जो कि मुझे नहीं लगता ये इम्पोर्टेंट है, बस हमारे नेबरिंग कंट्री से बांग्लादेश आया हुआ था। ठीक है भाई। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा G20 समझ में आ गया होगा और ये एनफ है आपके सिलेबस के लिए। गॉट इट। अब इससे रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन के फॉर्म में, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, बट आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन एक बार फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। लाइफ किसने प्रोपाउंड किया था? मोदी जी ने। ये होता क्या है? इसका एम होता है लिविंग इन हार्मनी विद द नेचर फॉर अ सस्टेनेबल लिविंग, वी शुड रेस्पेक्ट द नेचर एज वेल एज अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है भाई। नेक्स्ट, शेरपा का मतलब क्या होता है? इंडिया के शेरपा कौन है? एजेंडा, किस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं, तो ये इसके टॉपिक्स हो गए। ठीक है भाई। ओके। नेक्स्ट, इसका थीम क्या था? इस पूरे G20 का थीम से ही क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन आ ही जाएगा, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसको मत भूलना आप लोग। ओके। ये G20 का लोगो है, G20 के लोगो से भी क्वेश्चन आएगा, सबके मतलब आपको पता होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट, दिस इज द मेंबर कंट्रीज, कौन कौन मेंबर कंट्री हैं, ऑप्शन में आ सकता है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ G20 एंड कौन से इसमें मेंबर कंट्री नहीं है। एक बार गो थ्रू हो लेना। ठीक है। ओके। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक है भाई। इसका मेन पर्पस क्या था? इट वाज अ फोरम, आपको शॉर्ट नोट लिखने को भी आ सकता है, तो इट इज़ अ फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये था आपका पूरा का पूरा लेक्चर। सो आई एम गोइंग टू वाइंड अप द लेक्चर। कीप वॉचिंग, कीप रिवाइजिंग एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू सो मच।